Hello students, in the previous lecture we have studied about the scalar triple product of the vectors. Correct. So that scalar triple product is also known as what is box product. So we know that what is a scalar triple product, and if the vector ABC are given, then vector A dot vector B cross C or vector A cross vector B dot C. So both are called what is scalar triple product of the vector A and vector A, vector B and vector C. Correct. And also we have proved some result. Also we have taken the properties of the scalar triple product. So in that we have taken first property, if the vectors of the scalar triple product are interchange in the cyclic order or it is changed in the cyclic order, then value of STP remains same. If any two vectors are interchanged, then the value of STP changes in the sign. If any two vectors are same, then value of STP is what is 0. And we know that if the scalar triple product is 0, then we know that vectors are what is coplanar. And also we have seen there what is geometrical meaning of the scalar triple product. Directly we have written formula. This here proof is not given. So what is that? The scalar triple of vector A, vector B and vector C always represent what is volume of the parallelopipe, whose concurrent edges or quarter minus edges are given by what is vector A, vector B and vector C. And also we have written formula for volume of the tetrahedron, that is 1/6 of the volume of the parallelopipe. Okay, so all these results we have taken in the previous lecture. So now we will solve examples related to this results. So see here on the board I have written some examples. So see here these examples are from the exercise 5.5. So this example 1, 2, after that 3, 4 and 7 is there. And this example is actually solved example. ठीक है, तो ये example solve करेंगे. अब देखो यहाँ पे पहला example है find A डॉट वेक्टर B क्रॉस C, यानी इसका मतलब डॉट और क्रॉस दिया है, इसका मतलब इसको बोलेंगे व्हाट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ABC. तो देखो अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पे पहले गिवन लिख लो, क्या दिया, वेक्टर A इज इक्वल टू 3i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप. राइट, ओनली कॉम्पोनेंट व्हाट विल गेट 3 माइनस 1 4. देखो वेक्टर A हो गया. उसके बाद में वेक्टर B is given as what is 2i cap plus 3j cap plus 4k cap. That means what will get here 2, 3 and 4. ठीक है. उसके बाद में वेक्टर C is given as what is here minus 5i cap plus 2j cap plus 3k cap. That means we will get here what is minus 5, 2 and 3. So we have to find what is scalar triple product of vector ABC. तो कंसीडर क्या है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस C, ये आपको फाइंड करना है. इसका मतलब ही क्या होता है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं समटाइम्स दिस कैन बी आस्क्ड लाइक दिस आल्सो. तो क्या होता है डिटर्मिनेंट. अब देखो यहाँ पे फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है. क्या करना है आपको, डिटर्मिनेंट आप क्या करना है, वेक्टर A, तो वेक्टर A के कॉम्पोनेंट पहले 3 माइनस 1 4. देन वेक्टर B के कंपोनेंट क्या है 2, 3 एंड 4 एंड वेक्टर C के कंपोनेंट क्या है माइनस 5, 2 एंड 3. नाउ सिंप्लीफाई डिटरमिनेंट. तो देखो डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई करना ही है आपको यहाँ पे. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू, हाँ तो ये 9 माइनस 8, देन माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 1 इंटू, ये छोड़ दो, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 प्लस 20 हो जाएगा, 6 प्लस 20 देन प्लस 4. ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 15 हो जाएगा. यानी देखो ऐसा लेते समय क्या होता है, साइन चेंज होता है यानी. ठीक है, तो सिंपली कर लो इसको, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 26 एंड प्लस 4 इंटू वट इज 19 एंड ए विल गेट यर 3 प्लस 26 प्लस कितना आएगा 76. 19 इंटू 4 है ना 76. तो देखो कितना आ रहा है, तो कितना आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 12 प्लस 3 यानी 15, 1 विल बी देयर. तो ये आ जाएगा 8 और 2 यानी 10. तो आंसर इज व्हाट इज 105. तो देखो यानी यहाँ पे 3 वेक्टर का अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, वहाँ पे डॉट और क्रॉस है, तो आपको क्या मिल रहा है, स्केलर मिल रहा है. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. अब अगर ये 0 आता, सपोज स्केलर ट्रिपल ऑफ वेक्टर ABC अगर 0 आता, तो कंफ्यूजन क्या ड्रा कर सकते थे, वेक्टर्स आर कोप्लानर. अब यहाँ पे नहीं है, तो ये हो गया उसका प्रोडक्ट. उसके बाद में देखो सेकंड एग्जांपल. अब सेकंड एग्जांपल में क्या दिया, इफ द वेक्टर्स 3 वेक्टर्स आर गिवन
आर द, क्या देखो यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज किया, क्वार्टर माइनस। क्वार्टर माइनस का मतलब ही होता है कॉन्करेंट एजेस ऑफ द पैरेलल पाइप, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप। एंड अब यहाँ पे ये एडिशनल लिखा है मैंने, हेंस राइट द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। यानी अगर आपको पैरेलल पाइप का वॉल्यूम मालूम है तो आप टेट्राहेड्रॉन का भी वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस टेक फर्स्ट वेक्टर को ले लेते ए, क्या दिया यहाँ पे 3i + 5a कैप, जे टर्म मिसिंग है, यानी इसके कंपोनेंट कैसे लिखेंगे 3 0 1। देखो यहाँ पे जे टर्म मिसिंग है इसलिए उसका कोफिशिएंट क्या रहेगा 0। उसके बाद में सेकंड वेक्टर को ले लेते हैं, वेक्टर बी। हाँ तो क्या दिया यहाँ पे 4i कैप + 2j कैप - 3k कैप इज इक्वल टू, ठीक है, क्या आ जाएंगे यहाँ पे 4 2 एंड -3। उसके बाद में वेक्टर सी इज इक्वल टू, थर्ड वेक्टर को वेक्टर सी ले लेते हैं तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे 3i कैप + j कैप एंड +4k कैप, दैट मीन्स विल गेट हियर 3 1 एंड 4, ठीक है। एंड देयरफॉर क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, दिस इज नथिंग बट क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी। कॉन्करेंट एजेस ही चाहिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी। तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट, क्या आ जाएगा 3 0 1, देन 4 2 और -3 है, और 3 1 और 4। सिम्पली कर लो इसको आप, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 3 है तो 3 इंटू, हाँ तो ये टर्म जोड़ दो, क्या आ जाएगा 8 + 3 हो जाएगा, ये 8 + 3। अब देखो ये 0 है इसलिए जस्ट 0 इंटू कुछ भी रहा तो 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। +1 इंटू, देखो ये 0 है करके 0 लिखा डायरेक्टली 1, ये छोड़ दो अब, तो क्या आ जाएगा 4 - 6, 4 - 6, यानी ये आ जाएगा, लिख दो डायरेक्टली 11 + 3 यानी 33, 33 -2 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 31 क्यूबिक यूनिट्स। देखो यहाँ पे यूनिट लिखना जरूरी है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप है, और इन केस अगर ये निगेटिव आता होगा तो इसका क्या करना है, मॉड लेना है। अगर ये निगेटिव आए तो उसका मॉड लेना है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये आ रहा है कितना 11 × 3 यानी 33, 33 और ये -2 आ रहा है, तो 31 क्यूबिक यूनिट्स। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप। यूनिट लिखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट एग्जाम, और क्या बोला है वहां पे, हेंस राइट द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो इससे पूछा है तो लिख लेते हैं, देयरफॉर वी कैन से वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू क्या रहता है 1/6 ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एबीसी। 1/6 ऑफ द स्केलर ट्रिपल वेक्टर एबीसी, इसका मतलब भी क्या हो गया 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप। तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप कितना है, तो यहाँ पे 1/6 इंटू क्या जाएगा 31, यानी 31/6 क्यूबिक यूनिट, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन करके, वॉल्यूम ऑफ द क्या लिख सकते हैं वहाँ पे, पैरेलल पाइप लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो देखो डिटर्मिनेंट का बार बार मैंने यूज हो रहा है, आप लोगों को डिटर्मिनेंट की अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपने देखा होगा वेक्टर प्रोडक्ट में भी डिटर्मिनेंट का काम था, यहाँ पे भी है, बाद में आगे भी करने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे ये मैंने एग्जाम्पल 7th लिया है, यहाँ पे अब सेम एक्सरसाइज में गया है 5.5 में का। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन हुज वर्टासेस आर गिवन, यानी वर्टासेस दिया, मैं यहाँ पे ऐसा ही लिख लेता हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए क्या है -1 2 3, बाद में पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू क्या है 3 - 2 1, बाद में पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू क्या है 2 1 3, और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे -1 - 2 4। देखो यहाँ पे 4 वर्टासेस दिए और आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन फाइंड करना है। डेफिनेटली फ्रॉम दिस वी कैन आल्सो फाइंड वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप आल्सो। तो यहाँ पे क्या बताया था मैंने कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी ये क्या रहना चाहिए, कॉन्करेंट एजेस रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 4 पॉइंट दिया है, इससे अपन 3 वेक्टर फाइंड करेंगे। उसका क्या करना है, इनिशियल पॉइंट सेम लेना है। आप इनिशियल पॉइंट ए लो, बी लो, सी लो, कुछ भी लो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे वेक्टर ए बी फाइंड करेंगे, वेक्टर ए सी फाइंड करेंगे, वेक्टर ए डी,
यानी आपको क्या मिलेंगे वहाँ पे 3 कॉन्करेंट वेक्टर्स मिलेंगे और फिर उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा टेट्राहेड्रॉन का करके 1/6 ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स अलॉन्ग द कॉन्करेंट एजेस, यानी वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी एंड वेक्टर ए डी रहेगा यहाँ पे। तो देखो इसीलिए मैंने ये पोजीशन वेक्टर लिखा है। देयरफॉर वी कैन से वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, दिस इज इक्वल टू, हाँ तो क्या है यहाँ पे डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं ये 3 -2 1 -1 2 और 3, यानी ये आ जाएंगे यहाँ पे। चलो आगे लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस ए, तो क्या आ जाएगा 3 -1 यानी क्या हो जाएगा 4, ठीक है, कॉमा -2 देखो साइन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, -4, ठीक है ना, 1 -3 यानी 1 -3 यानी -2, ये हो गया। उसके बाद में वेक्टर ए सी यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे 2 1 3 है, माइनस ऑफ -1 2 3, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, हाँ तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 +1 यानी क्या हो जाएगा 3, 1 -2 यानी क्या आ जाएगा -1 एंड 3 -3 यानी क्या आ जाएगा 0। उसके बाद में वेक्टर ए डी, तो ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्या आ जाएगा ए, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1 -2 4 माइनस ए यानी क्या है -1 2 और 3, हाँ तो क्या आता है देखो अब -1 +1 हो जाएगा यानी -1 +1 यानी 0, कॉमा -2 -4, देखो साइन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और 4 -3 यानी 1, तो ये हो गया यानी। तो देखो मैंने यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या लिया ए, यानी इसका मतलब ये क्या हो गए कॉन्करेंट वेक्टर्स हो गए, क्वार्टर माइनस वेक्टर्स हो गए। अब यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं कि ए को लेना है, अगर दिया होगा तो ए ही लेना पड़ेगा, मगर नहीं दिया होगा तो आप चाहे तो वेक्टर बी ए, वेक्टर बी सी, वेक्टर बी डिफाइन कर सकते, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं उसमें। एंड देयरफॉर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या रहेगा फॉर्मूला 1/6 ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ कॉन्करेंट वेक्टर्स, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी। देखो यहाँ पे ये 3 वेक्टर यानी 1/6 डिटर्मिनेंट। तो देखो वेक्टर ए बी कितना दिया है 4 -2, बाद में 3 -1 0 0 -4 1, ठीक है। तो देखो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/6 इन द ब्रैकेट, तो 4 इन द ब्रैकेट, हाँ तो देखो ये 4 लिए तो -1 क्या हो जाएगा +0, ठीक है। बाद में ये -4 है तो क्या हो जाएगा +4 इन द ब्रैकेट, क्या हो जाएगा 3 -0 एंड -2, और क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 + 0 -12 + 0। देखो डिटर्मिनेंट में देखो फर्स्ट टर्म एज इट इज लेना है 4, ये छोड़ दो तो -1 ये 0 हो जाएगा। उसके बाद में माइनस है तो ये प्लस साइन लेना पड़ेगा मिडिल का, 4 ये छोड़ दो तो ये 0, देखो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, ठीक है, ये छोड़ दे तो 3 -0 और -2 लिए तो ये छोड़ दो -12 0 एंड देयरफॉर ये आ जाएगा यहाँ पे देखो ब्रैकेट बराबर दो तो 1/6 इन द ब्रैकेट, तो ये ओनली -4 +12 और +24 आ जाएगा, ठीक है, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 1/6 इंटू, हाँ तो देखो कितना आता है। तो अब देखो यहाँ पे 24 -4 कर लेते ना, 20 और 12 32, यानी ये आ जाएगा 16, 2 से डिवाइड कर सकते 3 टाइम्स, और यहाँ पे कितना 2 16 टाइम्स, यानी 16/3 क्यूबिक यूनिट्स। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। अब इससे आप अगेन वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाई फाइंड कर सकते, क्या करना पड़ेगा आपको वॉल्यूम ऑफ द, यानी क्या करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। इन केस अगर आपको वॉल्यूम ऑफ द यहाँ पे पैरेललोपाई पूछा होगा तो 1/6 लेने की जरूरत नहीं, यानी वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी और वेक्टर ए डी का ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है, ठीक है।
उसके बाद में देखो ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है और डायरेक्टली रिलेटेड टू द फार्मूलेज है, इसलिए रिजल्ट मालूम रहना बहुत जरूरी है आप लोगों को। उसके बाद में देखो एग्जांपल, ये सॉल्व एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, फाइंड एसटीपी ऑफ वेक्टर u v w, वेरीफाई दैट वेक्टर u v एंड w आर कोप्लानर। यानी ये अब इसको सीधा सीधा भी पूछ सकते हैं कि शो दैट वेक्टर u v w आर कोप्लानर। अब तीन वेक्टर को कोप्लानर प्रूव करना है तो क्या रिजल्ट मालूम है, उसका ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे बोला है पहले कि ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करो और उसको वेरीफाई करो, बोले तो उसका ट्रिपल प्रोडक्ट 100% 0 आना ही चाहिए। तो यहाँ पे ये गिवन है, देखो ये एग्जाम्पल 2 है, पेज नंबर 181, वैसे सॉल्व एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे वेक्टर u इज इक्वल टू क्या दिया है, i प्लस वेक्टर i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, दैट मीन्स वी कैन राइट 1 5 माइनस 2। वेक्टर u v दिया है 3i कैप माइनस j कैप, दैट मीन्स वी कैन राइट हियर 3 माइनस 1 और k कैप की टर्म नहीं है, यानी 0। और वेक्टर w इज इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे, 5i कैप प्लस 9j कैप माइनस 4k कैप। तो दैट मीन्स ये आ जाएगा 5 9 एंड माइनस 4। ठीक है, तो देखो वेक्टर u v w आर गिवन। अब यहाँ पे पहले क्या बोला है, आपको जस्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो कंसीडर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट u वेक्टर u वेक्टर v वेक्टर w इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 5 माइनस 2 3 माइनस 1 0 5 9 माइनस 4। तो क्या आ जाएगा, देखो 1 इंटू छोड़ दो ये, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 0। अब ये टर्म लेते समय साइन चेंज करना है, माइनस 5, ये छोड़ दो, अब क्या आ जाएगा माइनस 12 और ये माइनस 0 माइनस 12 माइनस 0 और ये माइनस हो जाए एज इट इज रहेगा माइनस 2, ओनली ये टर्म का साइन चेंज करना है। तो माइनस 2 ये छोड़ दो, क्या आ जाएगा 27 प्लस 5, 27 प्लस 5, पहले ये डायरेक्शन में ही मल्टीप्लाई करना है। हाँ, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 4 प्लस 60 एंड माइनस कितना आएगा, देखो अब ये 32 इंटू 2 64 माइनस साइन माइनस 64। देखो ये आ रहा है 64 माइनस 64, ये ऐड हो जाएगा यानी 0 0 आने चाहिए। तो देयरफॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर u v एंड w क्या है, 0 है। एंड देयरफॉर वी कैन से वेक्टर u वेक्टर v एंड वेक्टर w आर कोप्लानर। अरे इसमें ऐसा भी पूछ सकते कि व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस, तो क्या हो गया, वेक्टर्स आर कोप्लानर। देखो यानी बिल्कुल सिंपल है। अब देखो ये एक्सरसाइज सेम एक्सरसाइज में क्या है, ये सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल है 2, बाकी सब एक्सरसाइज में क्या है, ये देखो ये थर्ड एग्जाम्पल। हाँ क्या दिया है, इफ द वेक्टर्स 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, तो क्या दिया है, कोप्लानर दिया है, आपको p की वैल्यू फाइंड करना है। देखो ये पहला वेक्टर, लेट अस टेक फर्स्ट वेक्टर a। हाँ तो देखो क्या दिया है, वेक्टर a यानी माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस 3 4 माइनस 2। उसके बाद में वेक्टर b, सेकंड वेक्टर को b एज्यूम कर लेते, क्या है i कैप प्लस 2k, i कैप प्लस 2k कैप, दैट मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 0 2। ठीक है, और वेक्टर c इज इक्वल टू i कैप माइनस p वेक्टर j कैप, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस p और 0। देखो ये वेक्टर हो गया ABC। अब यहाँ पे क्या दिया है, वेक्टर्स आर कोप्लानर दिया है। तो देखो अब यहाँ पे सिंस वेक्टर a वेक्टर b एंड वेक्टर c आर कोप्लानर, देयरफॉर क्या हो जाएगा, उसका जो ट्रिपल प्रोडक्ट है ये आ जाएगा 0। देखो वेक्टर्स कोप्लानर है, इसका मतलब उसका ट्रिपल प्रोडक्ट क्या रहेगा, 0। तो क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल प्रोडक्ट यानी डिटर्मिनेंट। हाँ क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस 3 4 माइनस 2, ठीक है, 1 0 2
एंड 1 माइनस पी 0 इज इक्वल टू 0। देखो ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ना ये डिटरमिनेंट जो रहेगा, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपको पी की वैल्यू मिल जाएंगी। देखो क्या आता है, -3 इंटू 0 प्लस हो जाएगा 2p, बाद में -4 आ जाएगा। देखो ये टर्म लेते समय साइन चेंज करना है, -4 ये छोड़ दो, 0 -2 0 -2 एंड -2। देखो इसका साइन मैं एज इट इज ले रहा हूँ, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये टर्म छोड़ दो, -p एंड -0 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ रहा है, देखो ये तो 0 है इसलिए, यानी -6p प्लस क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और प्लस 2p इज इक्वल टू 0। -6p चेक कर लो एक बार साइन, ठीक है ना, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 4p प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है, -6p प्लस 2p, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो देयरफॉर -4p इज इक्वल टू -8 एंड देयरफॉर p की वैल्यू आ जाएंगी 2, p की वैल्यू 2, ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल है, कोप्लानर है, इसका मतलब उसका ट्रिपल प्रोडक्ट 0, बस सिंप्लीफाई कर लो। और उसके बाद में देखो अब ये लास्ट एग्जांपल है, 4th है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, शो दैट, ये सॉल्व एग्जांपल है, किताब में ये सॉल्व एग्जांपल है, शो दैट पॉइंट ए बी सी डी आर नॉन कोप्लानर। देखो नॉन कोप्लानर प्रूव करना है। कोप्लानर का मतलब क्या है, उसका ट्रिपल प्रोडक्ट 0, 3 वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो कोप्लानर। नॉन कोप्लानर है डेफिनेटली ट्रिपल प्रोडक्ट नॉन 0 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे लिखते समय ऐसा लिख लेते, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए क्या है 2 -1 0, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे -3 0 4, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे -1 -1 4, और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी है कितना है 0 -5 2। देखो 4 पॉइंट दिए है, और अब यहाँ पे सीधा बोला कि नॉन कोप्लानर है करके प्रूव करो। अगर वैसा दिया रहता है कि शो दैट कोप्लानर तो डिटरमिनेंट 0 आता है, नॉन कोप्लानर है यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा आपको, अगेन वेक्टर ए बी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर ए बी, बाद में वेक्टर ए सी और वेक्टर, देखो यानी उसका इनिशियल पॉइंट सेम लेना है, वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी एंड वेक्टर ए डी फाइंड करना है। तो ये रहेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट व्हाट इज बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, हाँ क्या है बी -3 0 4 माइनस ए यानी 2 -1 0। देखो ओनली कैलकुलेशन वाला पार्ट है बस, कितना आएगा माइनस साइन बराबर -5, देखो ये माइनस है -5 हो जाएगा, 0 माइनस माइनस यानी 1 4 -0 यानी क्या आता है 4। उसके बाद में वेक्टर ए सी यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट सी यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो -1 -1 4 माइनस क्या आ जाएगा 2 -1 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -3 बाद में -1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा 0, साइन बराबर 4 -0 यानी 4। देखो यहाँ पे माइनस साइन है करके इसके साइन चेंज करके लेना है, और ए डी यानी ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो डी यानी क्या है 0 -5 2 माइनस क्या है ए यानी 2 -1 0। देखो यानी 0 -2 यानी -2 -5 माइनस माइनस +1 हो जाएगा यानी -4, और 2 -0 यानी 2, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, इसका कंसीडर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी एंड वेक्टर ए डी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे -5 1 4 -3 0 4 एंड -2 -4 2। देखते क्या आता है, तो -5 इंटू कितना आएगा, छोड़ दो ये, तो क्या आएगा 0 + 16 आ जाएगा, 0 + 16 बाद में -1
तो ये टर्म जोड़ दिए तो -6 + 8 हो जाएगा, -6 + 8, -6 और +8, बाद में +4, तो कितना आएगा, ये टर्म जोड़ देना आप, ये भी जोड़ना है, तो 12 - 0, 12 - 0। तो देखो अब क्या आता है, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, हाँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -5 × 16 है। चलो स्टेप वाइज कर रहा हूँ मैं, -1 × कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 एंड +4 × 12, यानी कितना आएगा ये 80, तो -80 -2 एंड +48, यानी -82 + 48, ठीक है, यानी कितना आएगा देखो अब, तो कितना आएगा 4 और यहाँ पे 1 यानी 3, -34 आ रहा है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो यानी यहाँ पे वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी एंड वेक्टर ए डी, ये ट्रिपल प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 है। अगर 0 रहता तो वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी एंड वेक्टर ए डी क्या रहते, कोप्लानर, और वेक्टर कोप्लानर है तो पॉइंट्स कोप्लानर रहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी एंड वेक्टर ए डी आर नॉन कोप्लानर वेक्टर्स। अब वेक्टर्स अगर नॉन कोप्लानर है तो देयरफॉर वी कैन से पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर नॉन कोप्लानर, ठीक है। देखो यानी 4 पॉइंट क्या है, नॉन कोप्लानर है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल जो कोप्लानर के थे, देखो अपन ने कहाँ पे स्टार्टिंग में बिल्कुल जहाँ पे 1 वेक्टर इज ए यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग 2 वेक्टर, वहाँ पे प्रूव किए थे। तो वो मेथड से ये मेथड इजी जाएंगे आपको। 3 वेक्टर को कोप्लानर प्रूव करना है, उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो कोप्लानर, अगर नहीं है तो नॉन कोप्लानर, ठीक है। तो देखो यानी बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड विद द रिजल्ट ये एग्जाम्पल है। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट पे फोकस करना है आप लोगों को, नहीं तो होता क्या, बहुत बार अपनी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही नहीं आती बराबर। और सब इसमें देखो, सभी इसमें डिटर्मिनेंट से ही रिलेटेड है, इसलिए डिटर्मिनेंट की अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर अगेन विल टेक एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मगर थोड़े डिफरेंट टाइप के लेंगे अपन वहाँ पे, ठीक है। थैंक यू।